Warm greetings to you all. It's a pleasure to have your presence on this virtual platform to celebrate the spirit of incredible resilience and undoubted optimism. It's an honor to welcome you all to the celebration of Theatre Night 2021 Bal Bharati Public School NTPC Kharwal. Theatre hones students' performing skills, socialize and have fun outside the environment of the classroom. Theatre has been playing a significant role since the very beginning as a wake-up call for the politicians, government and people distracted from the moral and ethical values. The World Theatre Day is celebrated globally every year on 27th March. It is celebrated to showcase the important role artists play in the field of performing arts. The World Theatre Day is celebrated to promote the world art across the world, to enable the theatre communities to promote their work on the broader scale. The theme of today's event is Mahabharata, and the main theme of Mahabharata is to give an idea of the sacred duty. Every character in the epic is born in a particular social group or caste that must follow the duty prescribed by the sacred law. The characters who perform their sacred duty well are rewarded and who do not are punished. So it teaches us that we cannot give up in our life despite all hurdles. Without any further delay, sit back and enjoy as we unfold before you the evening full of energy. At first, we are going to witness the traditional and auspicious lamp lighting ceremony which symbolizing the brightness and prosperity. So I would like to invite our respected principal ma'am to accompany our highly regarded guests to light up the lamp. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. Thank you so much, sir and ma'am. Ganesha is the Lord of all the beginning. We would like to start our program with Ganesh Vandana, invoking the blessings in the form of saturation. We pray to Lord Ganesha that he make this event success and bless us. गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि शीतलन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. It is said, before you are a leader, success is all about growing yourself. After you become a leader, success is all about growing others. Now I would like to invite our source of inspiration, someone who is always willing to walk an extra mile alongside us, who always fortunes and nurtures us with his precious word. Let us welcome Dr. V.K. Ahuja, the chairman of Bal Bharati Public School. My congratulations to the principal, staff and students of NTPC Khargone for organizing virtual theatre night on this virtual platform during this tough COVID time. I would like to thank NTPC officials, parents for their continuous support and guidance which they have always been giving to us. Selecting Mahabharata connects our children with ancient culture. Each and every character of Mahabharata of this epic teaches us honesty, sincerity, happiness, discipline and respect, and so many other qualities which we need to know. All these qualities are part of our life. My children should also learn little bit of Gita, at least one shloka of Gita, which completes the Mahabharata. Gita has come, what has been taught because of Mahabharata. So I congratulate all of you. I wish you good luck. My best wishes to all of you. Once again, have a nice time, have a great time, enjoy. Thank you so much, sir, for your precious words. Welcome to our e-library, the awesome power of knowledge right at your fingers. The e-library is an electronic library consisting of information in digital, analog and digitalized form. Our BBPS e-library has numerous e-resources to read whenever, wherever you like. Browse the books, periodicals, read newspaper, explore the book of different genres, know about India and the world, current happening in the world, online quizzes, brain games, career opportunity, e-learning resources and fun learning website for kids and much more. Now it's my privilege to cordially invite our guest of honor, Mr. Sarangpani, our Vice Chairman, on the screen to enlighten us with his valuable words. Good evening, everyone. Greetings to one and all present here. BBPS Khargone had made a firm niche for itself as an education institution of great promise and enviable standards under the guidance of Child Education Society. The merit of the students, the diligence of teachers and the principal, and the support from parents have ensured a meteoric rise of this young institution. It is often said that unprecedented times require unprecedented measures. Throughout the pandemic situation and lockdown, our focus had been to strengthen the academic roots of each of the students along with nurturing them for a holistic development by indulging them in extracurricular activities through online classes. I am happy that the school continued its service to ensure uninterrupted learning for all the students during this difficult COVID period. With the aim to take these efforts to the next high level and to fulfill one's duty towards imparting education to every little soul who craves to learn, BBPS Khargone has taken a step forward under NTPC's CSR initiative to impart free education to the children in the nearby villages. I really appreciate the leadership and the staff who had taken time to put these thoughts into action. One more significant step the school has taken is the development of the e-library. Today's children are all very tech savvy, and I'm sure this initiative will go a long way in enhancing the knowledge of our students. It gives me great pleasure for all of us to witness the theatre night performed by our little ones. We all know that immense hard work is required to make any idea into a great success, and I would congratulate all the students, staff and the principal to make this possibility a reality.
even in these difficult and unusual times. I am sure these continuous efforts will take us all through the journey of success, growth, and unending accomplishment. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your precious words. Mahabharata has deep underlining symbolism. Imagine Draupadi as human body and Pandavas as 5 senses vivid to it. The first cousin of 100 in number, the Kauravas, are represented as the form of tendency of mind. The senses also think that they can win over the tendency of mind. Let us learn more about this Mahabharata through this narrative. इस धरती का स्वर्ग है अपना भारत देश, इस धरती का स्वर्ग है अपना भारत देश, जिसकी सात्विक सोच है संस्कारी परिवेश। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध संस्कृति विरासत है। आज मैं उन्हीं प्राचीन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए महाकाव्य महाभारत के बारे में बताने आया हूँ। हमारा उद्देश्य है छात्रों को प्रबंधकीय व्यवस्था से जोड़कर इन महान ग्रंथों द्वारा प्रबंध व अर्थशास्त्र के हर नियम को समझे तथा महापुरुषों के आदर्श विचारों को अपने अंदर समाहित करें। महाभारत काव्य द्वारा कार्य योजना, चक्रव्यूह, निपुण नेतृत्व, निर्माण कला, दृष्टिकोण, संवाद, शब्द भेद, भाषण, उद्घोषणा आदि से छात्र परिचित हों, क्योंकि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के उत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ। इन्हीं संस्कृति विरासत की रक्षा के लिए व्यवस्था को आधुनिक युग से जोड़कर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की हम सभी छात्रों ने यह संदेश देने का साहसिक प्रयास किया है। We are now going to witness the wonderful and the graceful moment of our school student to present the Mahabharata event before us with the combination of gesture, speech, dance, music, song. So let us welcome the most awaited theatre night. समय हूँ और आज मैं महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है
सत्य और असत्य के महायुद्ध की। और यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले जाले की। और मेरे अलावा यह कथा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसलिए तो कभी गुरु, कभी माँ, कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कथा द्वारा इस महायुद्ध के लिए तैयार करता हूँ। वास्तव में यह कथा उस दिन शुरू नहीं हुई थी जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वह तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन एक नारी के सम्मान को अधर्म की बेड़ी से बांधा गया था और सभा के सामने उसके सम्मान को ठेस पहुंचाया गया था। तो आइए आपको ले चलते हैं द्रौपदी स्वयंवर की ओर, जहां भारतवर्ष के महान राजागण एवं महान योद्धा अपना कौशल दिखाने के लिए राज दरबार में उपस्थित हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने श्रृंगार रस प्रधान द्रौपदी स्वयंवर। और अब उसी युवती का स्वयंवर होने जा रहा है जो यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनको यज्ञ सेनी कहा जाता है। ऐसा स्वयंवर तो आज से पहले न कभी हुआ है, न आज के पश्चात कभी होगा। सारे भारतवर्ष के राजा महाराजा वहां आएंगे और द्वारिका के यादव भी आएंगे। तब तो हमें उनके दर्शन के लिए अवश्य चलना चाहिए। जो आज्ञा पिताश्री। ये यंत्र तो मैंने अर्जुन को ध्यान में रखकर बनाया था। मुझे तो डर है कि द्रौपदी की वरमाला उसके हाथ में ही न रह जाए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं पिताश्री? आज इस मंडप में भारत के सभी योद्धाओं का जमघट है और स्वयं द्रोणाचार्य जी के दूसरे पुत्र भी तो यहाँ उपस्थित है। तो जाओ द्रौपदी को लेकर आओ। जो आज्ञा पिताश्री। हमारे पिताश्री ने आप सब महावीरों को इस स्वयंवर में आमंत्रित किया है। वो रहा आपका लक्ष्य, मछली की घूमती हुई आग। परंतु आपको उसके नीचे रखे गए तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखकर तीर चलाना है। जो महावीर इस लक्ष्य भेद में सफल होगा उसी के गले में द्रौपदी माला डालेगी। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि अपना अपना प्रयास आरंभ करें। ठहरो, मेरी वरमाला इस शुद्ध पुत्र के लिए नहीं है। यदि ऐसा है तब तो तुम्हारी वरमाला प्रतीक्षा करते करते सूख जाएगी राजकुमारी। ऋषियों, नदियों और वीरों का गोत्र नहीं होता महाराज ध्रुपद। आपकी सभा में मेरे परम मित्र अंगराज का अपमान हुआ है। यदि आपके स्वयंवर यह प्रतिबंध था तो स्वयंवर शुभ आरंभ होने से पहले आपको बता देना चाहिए था। हस्तिनापुर के युवराज को इतने ऊंचे स्वर में बोलकर अपने अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए अंगराजगण।
हमारे अतिथि हैं, परंतु उनको इस स्वयंवर की परंपरा का ज्ञान तो होना ही चाहिए था। और द्रोण शिष्य दुर्योधन से अधिक और कौन जान सकता है कि मित्रता की तरह नाता भी बराबर वालों के साथ ही होना चाहिए। और मेरी बहन दिव्य जन्म द्रौपदी, उसके हाथ तो वरमाला है। यदि वो किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करना चाहती तो उसका विवाह किसी सूत पुत्र के साथ नहीं होगा। और जाते जाते अंगराज कर्ण ठीक ही कह गए। मैं तो सोच रहा था इस स्वयंवर में जहाँ युवराज दुर्योधन, राजकुमार दुशासन, सत्यकी महाराज जयाद्रथ और महाराज जरासंध जैसे योद्धा बैठे हैं, वहाँ पर इस लक्ष्य भेदन से भला क्या कठिनाई हो सकती है। कोई ना कोई महावीर तो मेरी बहन की वरमाला से धन्य हो ही जाएगा। परंतु लगता है कि कुंती पुत्र अर्जुन के साथ धनुर्विद्या भी उसी लक्षाग्रह में जलकर भस्म हो गई। क्या इस स्वयंवर में कोई महावीर नहीं है जो लक्ष्य भेदन करके भारतवर्ष की धनुर्विद्या का मान रख सके? द्रौपदी स्वयंवर के पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार अर्जुन दिव्य शक्ति द्वारा इंद्रप्रस्थ का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात दुर्योधन को भी इंद्रप्रस्थ आने का निमंत्रण मिलता है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इंद्रप्रस्थ राजमहल की ओर, जहाँ दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तो प्रस्तुत है आपके सामने हास्य रस प्रधान दुर्योधन अपमान। इस बंजर खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना डाला। इंद्रप्रस्थ में यह मायावी महल, अद्भुत। उस माया दानव का चमत्कार, आश्चर्य। कितना सुहावना दृश्य है, वाह। युवराज की जय हो। आगे जाइए युवराज, यह जल का कुंड नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे मत बताओ दासी। युवराज की जय हो। आगे बढ़िए युवराज, यह अग्निकुंड नहीं है। मुझे बताने चले हैं मूर्ख। युवराज की जय हो। आगे मत बढ़ना युवराज, यह जल का कुंड है। अच्छा, तो अब दासी भी मूर्ख बनाने चली है। अंधे का पुत्र द्रौपदी, इस अपमान का बदला मैं एक दिन अवश्य लूंगा। यह मेरा प्रण है पांचाली। इस प्रकार ईर्ष्या की अग्नि से जला भुना दुर्योधन और द्रौपदी द्वारा अपमान में आग में घी डालने का कार्य किया। तत्पश्चात दुर्योधन ने शकुनी मामा के साथ मिलकर एक नए षड्यंत्र को जन्म दिया। तो प्रस्तुत है आपके सामने विभत्स रस प्रधान दुर्योधन शकुनी षड्यंत्र।
मित्र, उसे तो तुम्हारे अपमान का दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। मुझे आदेश दो कि मैं तुम्हारे घाव पर लगाने के लिए इंद्रप्रस्थ का भस्म ले आऊं। यदि स्वयं बदला लेना चाहते हो तो सेना लेकर चलो और इंद्रप्रस्थ की ईंट से ईंट बजा दो। अरे तुम दिन रात रणभूमि में ना खड़े रहा करो। अंग्रेज योद्धा होने का अर्थ यह नहीं है कि ना दिन देखो ना रात, बस धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े रहो। तो फिर अपमान का बदला कैसे लिया जाता है मामा श्री? बुद्धि से। बुद्धि से बढ़कर ना कोई शस्त्र है और ना कोई अस्त्र। अरे मैं तो ये कहूँगा कि जीजाश्री के अनुज पुत्रों के राष्ट्रीय यज्ञ करके लिया है। अब हसीनापुर को भी चाहिए कि उनके सम्मान में समारोह आयोजन करें। जब समारोह होगा तो चौसर तो जमेगा ही। सम्राट युधिष्ठिर से मैं एक बार हार चुका हूँ, क्या मुझे एक और अवसर नहीं मिलना चाहिए? मैं तुम्हें वचन देता हूँ प्रिय दुर्योधन कि अब की बार जुए में यदि मैंने सम्राट युधिष्ठिर को कंगाल ना बना दिया तो मैं भी वनवास ले लूंगा। अरे इंद्रप्रस्थ भी मैं बिन कारण नहीं आ रहा था। मेरे इसी हाथ से ही तुम्हारे जीत का मार्ग निकलेगा। मुझे आज्ञा दो मित्र। तुम्हें तो चले ही जाना चाहिए अंगराज, क्योंकि ये समझदारी की बातें तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मेरे शब्दकोश में षड्यंत्र का समझदारी नहीं है मामा श्री। तुम्हारा ये मित्र बड़ा मूर्ख है। अरे मैं तो इसे इसलिए झेलता हूँ। पुत्र, तुम्हारे प्रति इसकी निष्ठा पर मुझे अटल विश्वास है। राजनीति में ऐसे ही मूर्खों का अपना एक स्थान और महत्व होता है कि जब चाहो इन्हें बाण बनाकर किसी की ओर चला दो या फिर चौसरी गोती बनाकर पिटवा डालो। नहीं मामा श्री, वे इतने मूर्ख नहीं हैं। वे चौसर खेलने कभी नहीं आएंगे। आएंगे भांजे, वे अवश्य आएंगे, क्योंकि कोई भी क्षत्रिय युद्ध और जुए के आमंत्रण को कभी भी अस्वीकार कर ही नहीं सकते। यह एक क्षत्रिय मर्यादा है भांजे, और पांडव तो मर्यादा भंग कर ही नहीं सकते। और फिर से आमंत्रण ज्येष्ठ पिताश्री की ओर से जाएगा ना, और पांडव यहीं से इंद्रप्रस्थ लेके गए थे भांजे, और पांडव यहीं पर इंद्रप्रस्थ दे के जाएंगे। और द्रौपदी, मेरे अपमान का क्या होगा मामा श्री? उसका भी उपाय सोच लिया जाएगा भांजे, सोच लिया जाएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं हस्तिनापुर की राजसभा की ओर, जहाँ एक नारी के सम्मान को क्रूर कौरवों के हाथों शर्मसार होते हुए महान योद्धा गण मस्तक नीचे किए हुए स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने करुण रस प्रधान द्रौपदी चीरहरण दृश्य। सब कुछ हार गए सम्राट। अब कहा के सम्राट मामा श्री। अब क्या दाव लगाओगे युधिष्ठिर? अब मैं प्रिय अनुज नकुल को दाव पर लगाऊंगा। अब क्या चाहिए प्रिय दुर्योधन? अब मुझे नौ की आवश्यकता है मामा श्री। नकुल भी दासवा। अब मैं सहदेव को दाव पर लगाता हूँ। सहदेव भी दास हुआ। अर्जुन को दाव पर लगाता हूँ। 8 मामा श्री। मैं अपने भाई भीम को दाव पर लगाता हूँ। 12। अब महाराज मैं अपने आप को दाव पर लगाता हूँ। ये पासा मुझे अवश्य चाहिए मामा श्री। मुझे 9 की आवश्यकता है। अब ये खेल समाप्त ही करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं? है ना महाराज आपकी द्रौपदी? हाँ, अब मैं द्रौपदी को दाव पर लगाता हूँ। मुझे
मुझे की आवश्यकता है मामा श्री। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। मुझे हार जाने वाले से पहले यह पूछो कि पहले अपने आप को हारा था या मुझे। हे राजन, कुलगुरु होने के नाते मेरा यह कहना कर्तव्य है। मृज्ञा व अद्वितीय ये ऐसे अवगुण हैं कि वह व्यक्ति का नाश कर देते हैं। कुलगुरु, यदि मैं हारा होता तो ये स्वर्ण शब्द आपको कभी याद नहीं आते। जब बांस का अंत होने वाला होता है तो महाराज उसमें फूल आने लगता है। दुर्योधन भी हस्तिनापुर की राजनीति का फूल है महाराज। फिर भी यदि आप सोच सकते हैं तो सोचिए, द्रौपदी कुल वधू है, उसका अपमान पूरे कुल का अपमान है। पितामह, द्रौपदी अब कुलवधू नहीं है, द्रौपदी अब मेरी दासी है। बैठ जाइए पितामह, बैठ जाइए। ये नहीं द्रौपदी। क्या कहा था तुमने? अंधे का पुत्र अंधा। दुशासन, उठो और इस दासी को मेरी जंगा पर बिठा दो। दुर्योधन, अगर मैंने इस अपमान के लिए तुम्हारी जंगा नहीं तोड़ी तो मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा दास बनना स्वीकार करूंगा। आंखें झुकाने समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई शर्म को स्वीकार करते हुए प्रणाम करती हूँ और आज मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ हैं, विद्वान हैं, बताइए पितामह, बताइए। आप जैसे महापुरुष को मुंह छिपाना शोभा नहीं देता पितामह। क्या भरतवंशियों की यही परंपरा है? आज मैं आपके मुंह से सुनकर चुप हो जाऊंगी। पुत्री, आज मैं विवश हूँ। आज मैं रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ पितामह। आप पाप के वृक्ष के छांव के नीचे बैठे हैं। उठ जाइए पितामह, उठ जाइए। आपको शास्त्रों का तो ज्ञान है, तो आप बताएं, जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को हार चुका है वो कौन होता है किसी और की स्वतंत्रता को दांव पर लगाने वाला? मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांग रही हूँ पितामह, क्योंकि यह प्रश्न केवल द्रौपदी नहीं कर रही है, यह प्रश्न कर रही है ये पूरी नारी जाति। यह प्रश्न कर रही है पृथ्वी, जो हर प्राणी की माँ है। यह प्रश्न कर रहा है इस देश का भविष्य, जिससे आपके पूर्वज महाराजा चक्रवर्ती भरत से नाम मिला है। मुझे मार्गदर्शन प्रदान करे गंगा पुत्र भीष्म पितामह। पुत्री, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मैं तो उस अपमान की बात कर रही हूँ जो मेरे आंखों के सामने से पिघल रहा है। यदि पत्नी पति की संपत्ति नहीं होती है तो वे अपने आप को हार चुके थे, फिर मैं दांव पर क्यों लगी? यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो वे अपने आप को हार चुके थे, फिर मेरे पति मेरे आज्ञा के बिना मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? इस वंश की मर्यादा इस विषय में क्या कहती है? और कृपया आप मुझे पुत्री से संबोधित ना करें। यदि मैं आपकी पुत्री होती तो आज आप यह अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपकी प्रिय अनुज पांडु की पुत्र वधू द्रौपदी आपको प्रणाम करती है। हे ज्येष्ठ पिताश्री, आप बड़े भाग्यवान हैं जो आप नेत्रहीन जन्मे, नहीं तो आज यह दुर्दशा देखकर आप अवश्य नेत्रहीन हो जाते। जो आज्ञा ज्येष्ठ पिताश्री, परंतु उनसे अपना प्रश्न करने से पहले मैं मेरे पिता के मित्र गुरु द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करती हूँ। उनके लिए भी मेरे पास प्रश्न है। हे गुरु द्रोणाचार्य, ये आपकी पुत्री आपका चरण स्पर्श कर रही है। आपने मुझे अपनी पुत्री माना था ना? तो आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? सब लोगों ने अपने होठों पर मौन का ताला लगा लिया है, कोई बोलता क्यों नहीं? किसी के पास जवाब है? हे श्रेष्ठ, आपने हमें किस अधिकार से दांव में लगाया? मैं पत्नी होतों से
पांचों पांडवों की, फिर आपने ये निर्णय अकेले कैसे ले लिया? क्या तुमने आज्ञा दी थी या तुमने? बोलो बोलो, किसने आज्ञा दी? क्यों नहीं बोलते? श्रेष्ठ धनुधर, कहाँ गई तुम्हारी वीरता? हे दुशासन, उठो और इस दासी को नग्न कर दो। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, हे योगेश्वर, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ गिरधारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। पिताश्री, हे गुरु द्रोणाचार्य, हे कृपाचार्य, आप सब सुने। इस निर्लज्ज कायरों से भरी हुई सभा में मैं द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री, इंद्रप्रस्थ नरेश की पत्नी, आज यह प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जब तक मैं दुशासन के लहू से अपने केशों को नहीं धोऊंगी, तब तक मैं अपने केशों को नहीं बांधूंगी। तो आइए आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र की ओर, जहां अर्जुन अपनों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तत्पश्चात श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने वीर रस प्रधान कौरव पांडव युद्ध। नहीं, क्या हुआ पार्थ? अर्जुन, अर्जुन, तुम विचलित क्यों हो गए? बताओ कुंती कुमार, क्या बात है? मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अरे पार्थ, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? क्यों नहीं लड़ सकते? मेरे बाणों के निशानों पर अपने ही सगे संबंधी हैं, तो फिर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ? इस देव मंदिर में ही कर्तव्य का संग्राम है। तुम्हारे पितामह और गुरु द्रोण भले कितने ही अच्छे हो, लेकिन प्रतिज्ञा और कर्तव्य के बंधन से बंधे हुए हैं, इसीलिए अधर्मियों का साथ दे रहे हैं। तुम्हें उनका वध करना होगा। मैं अपनों के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता वासुदेव, नहीं रंग सकता। तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वे तुम्हें मार देंगे। अगर तुम धर्म की राज स्थापित नहीं करोगे तो अधर्मियों का राज होगा। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करना, न्याय और धर्म के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं, वीरता है। अर्जुन, अर्जुन, तुम किसी के मरने का दुख मत करो। पितामह, लगता है धर्मराज युधिष्ठिर का युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। वो देखिए, संधि भिक्षा मांगने दौड़ते चला आ रहा है। क्या मैंने या कृपाचार्य ने तुम लोगों को संधि की भिक्षा मांगने की भी शिक्षा दी थी, राजकुमार दुर्योधन? युद्ध का अर्थ ये नहीं कुमार कि तुम अपनी जीभ के बाण से सभ्यता की छाती भेद दो। युधिष्ठिर तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है, उसका अपमान तुम्हारा अपमान है। ये इस प्रकार की सारी सीमाएं पार कर चुका है आचार्य। पुत्र दुर्योधन वो संधि की भिक्षा मांगने नहीं आ रहा है। तो फिर किस लिए आ रहे हैं? आप माने या ना माने पितामह, किंतु बात यही है कि वह कौरव सेना के महासागर में उतरने से पहले ही डूब गया है। अगर वह संधि की भिक्षा मांगने नहीं आ रहा है तो वह अवश्य अपनी जीवन की भिक्षा मांगने आ रहा होगा। प्रतीक्षा करना सीखो पुत्र, प्रतीक्षा करना सीखो।
प्रणाम पितामह। मैं आपसे युद्ध की आज्ञा लेने आया हूँ पितामह। विजय भव पुत्र युधिष्ठिर, विजय भव। आपकी आज्ञा के बिना तो मैं शत्रुओं से भी युद्ध नहीं करूँगा पितामह, और ये युद्ध तो स्वयं आपसे है। अपनी प्रतीक्षा की रस्सी में जकड़ा हुआ तुम्हारा ये पितामह तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए विवश है, और इसीलिए आज तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद देने के अतिरिक्त केवल तुम्हें घाव ही दे सकता हूँ। मैं उन घावों को भी आपका आशीर्वाद समझूंगा पितामह। तो आइए अब हम वह दृश्य देखते हैं जहाँ सुशर्मा से युद्ध करते हुए अर्जुन कुरुक्षेत्र से काफी दूर चले जाते हैं। तत्पश्चात इस मौके का फायदा उठाते हुए गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन व सभी चक्रव्यूह का ऐलान कर देते हैं। अर्जुन की अनुपस्थिति में वीर अभिमन्यु युद्ध का संचालन करते हैं। तो आइए अब हम वह दृश्य देखते हैं जहाँ वीर अभिमन्यु अपने कौशल से अनेक महारथियों को आश्चर्यचकित करते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने अद्भुत रस प्रधान अभिमन्यु वध। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुशासन, कर्ण, मुझे इसकी मृत्यु चाहिए। आक्रमण! श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे भारद्वाज पुत्र, मैं आपके प्रिय शिष्य महारथी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वह सारे नियम भूल चुके हैं जो आपके ही प्रधान सेनापति गंगापुत्र भीष्म ने बनाए थे? क्या ये नियम नहीं बना था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा? युद्ध कर बालक, तेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तेरे बाहर जाने के द्वार बंद हो चुके हैं। जो वीर होते हैं वे भागने का मार्ग खोजते भी नहीं ताऊश्री। यदि आप लोग कायर नहीं तो द्वंद्व युद्ध कीजिए। हे आचार्यवर, मैं भी श्री श्री वासुदेव कृष्ण जैसे गुरु का शिष्य हूँ। ये मत समझिएगा कि यदि आप लोग एक साथ मिलकर आक्रमण करेंगे तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध अवश्य करूंगा। मैं तो केवल यह चाहता था कि कहीं आने वाले कल में आप जैसे महारथियों की गिनती कायरों में ना की जाए, क्योंकि आप सभी में से कोई मेरे पिताश्री के गुरु है, कोई गुरु पुत्र है, कोई भाई है और कोई मित्र है। दुर्भाग्य है कि मैं आप जैसे कायरों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो रहा हूँ। पिताश्री, पिताश्री, सूर्यास्त के उपरांत यहाँ आकर इस भूमि से पूछिएगा कि आपका पुत्र इन कायर महारथियों से कैसे लड़ा। आप तो आचार्य हैं। हे गुरु श्रेष्ठ, क्या एक योद्धा का यही धर्म है
कि इतने सारे योद्धा मिलके एक निहत्थे योद्धा पर आक्रमण करें? हे भारद्वाज पुत्र, हे परशुराम शिष्य, क्या यही आपकी रणनीति है? हे तात, हे मातु, अभिमन्यु का अंतिम प्रणाम। जैसा कि हम सबने देखा, जयद्रथ के वध के बाद भी सूरज डूबा, किंतु युद्ध का शंख नहीं बजा और मशालें जल उठी। तभी कुछ ऐसा तूफान सा आया जिससे कौरव सेना में अचानक भगदड़ मच गई। मशालों की रोशनी में देखा कि उनके सामने एक पहाड़नुमा विशालकाय व्यक्ति खड़ा है। वो था भीम हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच। तो प्रस्तुत है आपके सामने भयानक रस प्रधान घटोत्कच वध। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ मित्र, कि स्वयं के रक्त में नहाया हुआ है तुम्हारा मित्र तुम्हें कैसा लग रहा है? थोड़ी देर बाद ना रहेगा ये तुम्हारा मित्र और ना रहेगी ये तुम्हारी सेना। फिर तुम अर्जुन को युद्ध भूमि में ढूंढते रहना। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे मित्र से अधिक अर्जुन का महत्व है तो मैं तुम्हें अपनी मित्रता के बंधन से मुक्त करता हूँ। ऐसा ना कहो मित्र, ऐसा ना कहो। अंतिम पड़ाव पर जहां दुर्योधन सरोवर में जा छिपता है, तत्पश्चात भीम के ललकारने पर दुर्योधन सरोवर से बाहर आता है, जहां भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध होता है। तो प्रस्तुत है आपके सामने रौद्र रस प्रधान दुर्योधन वध। हे महाराज, दुर्योधन इस सरोवर में छुपा हुआ है। हे वासुदेव, मैं इस विजय के पल में एक अनूठे आनंद के साथ साथ उदासी का भी अनुभव कर रहा हूँ। पर यह बात कौन जान सकता था कि जिस सेना में गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भ्राता कर्ण जैसे महायोद्धा थे, उस सेना को असहाय देख मन में पीड़ा हो रही है। नहीं भैया नहीं, जब तक दुर्योधन जिंदा है तब तक आप वहीं खड़े रहिए जहाँ प्रथम दिन युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसीलिए अपने हृदय को पिघलने मत दीजिए बड़े भैया। आपने सही कहा मधुसूदन। देखिए, दुर्योधन ने अपने माया से सरोवर के जल को स्थिर कर दिया है। हे दुर्योधन, तुमने भरत वंश में जन्म लिया है। मृत्यु से भागकर मृत्यु का अपमान मत करो। अगर राज्य चाहिए तो युद्ध करो, नहीं तो श्रेष्ठ भ्राता से हार स्वीकार करो। ज्येष्ठ भ्राता के सामने हाथ पसारना अधिकार सिद्ध होता है अनुज। हे युधिष्ठिर, तुम यूं ना समझो कि मैं तुम 5 भाइयों से डरकर छिपकर बैठा हूँ। नहीं, मैं तुम लोगों की घृणा के ताप को ठंडा करने के लिए जल में उतर आया हूँ। आ रहा हूँ युधिष्ठिर, आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे नारायणी सेना से खुद अधिक सशक्त सेना हूँ। आज मैं अकेला हूँ, निहत्ता हूँ। तो कृष्ण आप बताइए, इन 5 से अकेले लड़ना है या अलग अलग लड़ना है? हे अनुज, मेरा अभिमन्यु भी अकेला था, निहत्ता भी था, पर तुम कायरों ने उसे धोखा देके मारा है। पर मैं आज ऐसा होने नहीं दूंगा। चुन लो, हम 5 भाइयों में से किससे युद्ध करना चाहते हो? मैं गदा युद्ध करना चाहता हूँ। तुम भाइयों में से जो चाहे युद्ध कर सकता है। ज्येष्ठ भ्राताश्री, मुझे दुर्योधन से युद्ध करने का अवसर दिया जाए। ठीक है भीम। तेरे अतिरिक्त तेरे भाइयों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे गदा के सामने टिक जाए। भ्राताश्री, यह युद्ध का अंतिम भाग है, तो इसका निर्णायक कौन होगा भ्राताश्री? यह कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है दुर्योधन। आज इस युद्ध में या तो मैं रहूंगा या तो तू। परंतु युद्ध शुरू होने से पहले तू यह जान ले कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे दाई कंधे की रक्षा के लिए
दिला दो कि दुर्योधन का झंडा तोड़ना है। परंतु हे केशव, यह तो गदा युद्ध है, यह कैसे संभव है? तो तुम याद नहीं दिलाओगे तो मैं इशारों से याद दिलाऊंगा। ओ मछली भैया प्रशंसनीय, ओ मछली भैया ये तो विश्वसनीय है। मुझे तुमने छल से मारा है भीम। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की दुर्योधन। ये वही जंगा है ना जिसमें तू द्रौपदी को बिठाना चाहता था। यह धर्म की विजय और अधर्म की पराजय का दिन है भैया। सूर्य के सामने विजय की पहली रात्रि कौरव शिविर में बितानी चाहिए भैया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात श्री कृष्ण और पांचों पांडव भीष्म पितामह के निकट आते हैं। भीष्म पितामह जो कि बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, सभी उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। श्री कृष्ण के निवेदन पर भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को राजधर्म व धर्म स्थापना की शिक्षा देते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने शांत रस प्रधान धर्म स्थापना दृश्य। मैं जानता था कि तुम अवश्य आओगे। तुम्हारे दर्शन ने मेरी सारी पीड़ा हर ली। हे देवकी नंदन, मुझे तो जीते जी मोक्ष मिल गया। वही तो मैं चाहता था कि आप अपने युधिष्ठिर को अंतिम शिक्षा दीजिए। हे देवकी नंदन, आपके होते हुए शिक्षा देने वाला मैं कौन? नहीं पितामह, नहीं। मेरे पास ज्ञान तो है किंतु अनुभव नहीं। अपना अनुभव देकर इन्हें धन्य दीजिए। तनिक मेरे आंसू पोंछ लो वासुदेव कि मैं हस्तिनापुर नरेश पांडुपुत्र चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर के दर्शन कर सकूं। हस्तिनापुर नरेश की जय हो। और अब मुझे स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान की आज्ञा दी। जो नहीं देखना था वह नहीं देखा, और जो देखने के लिए जी रहा था वो भी देख। नहीं पितामह, नहीं, मैं आपको जाना नहीं दूंगा पितामह, मैं आपको जाना नहीं दूंगा। तूने ऐसे बाण नहीं मारे बस जिनके घाव हो जाए। अरे यह घाव तो मेरे सारे जीवन की कमाई है बस। देख, अब हट न कर। मेरी एक अंतिम सेवा करने बस मेरे माथे पे मेरी मातृभूमि की थोड़ी सी मिट्टी लगा दे। अब तो बारे में कुछ बताइए नहीं। धर्म विधियों और औपचारिकताओं के अधीन नहीं है पुत्र युधिष्ठिर। धर्म अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों की संतुलन का नाम है। इसलिए धर्म का पालन अवश्य करना। राजधर्म भी यही है। यदि कोई परिस्थिति देश के विभाजन की मांग कर रही हो तो कुरुक्षेत्र में आ जाओ, किंतु देश का विभाजन कभी न होने दो। अब मैं थक गया वासुदेव। वैसे भी अब मुझे कुछ और नहीं कहना है पुत्रार्जुन। अब तो मेरे माथे पे मेरे देश की भूमि का तिलक लगा है। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त करने दीजिए जी। बस अब जाने की आज्ञा दीजिए। हे मातृभूमि, अब मुझे अपनी माता के पास जाने की आज्ञा दीजिए। तो इस प्रकार हम सभी ने महाभारत की अमर कथा को 9 रसों द्वारा भारतीय संस्कृति का परिचय प्राप्त किया है। साथ ही साथ असत्य पर सत्य की जीत और अज्ञानी अंधकार को मिटा देने वाली ज्ञान प्रकाशी उपदेश को भी आत्मसात किया है। यह अमर गौरव गाथा आज की नई पीढ़ी को भी कई उपदेशों के माध्यम से जागरूक करती है। तो हम सभी इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और उन्नति पथ पर अग्रसर हो। Dear audience,
audience, we truly hope that the excitement of today's event enthralled you. May I now call upon our respected Principal Ma'am to propose the vote of thanks. A warm and graceful evening to one and all. It is my proud privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make today's program a grand success. I, on behalf of BPS Khargone fraternity, first of all extend a really hearty vote of thanks to our Honorable Chief Guest, Shri Brahmaji Rao, GM, ONM, NTPC Khargone, for sparing time from his busy schedule to grace the occasion. My gratitude to Mr. R. Sarangapani, GM Maintenance, Vice Chairman, BPS Khargone, and today's guest of honor to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this surely be going to encourage us in our future endeavors. My special thanks to our role model and a true leader, Shri L.R. Channa, President, CES, who has been a guiding force for all of us. My sincere thanks and gratitude for the constant guidance and motivation to Dr. B.K. Ahuja, Chairman, BPS Khargone. Thank you, sir, for sharing your words of wisdom with us. I extend my sincere thanks to our Secretary Manager, Mr. Arvind Bhatia, for his valuable guidance and endless support. I am also thankful to the members of the Managing Committee for their inputs and advice. I take this golden opportunity to thank Mr. M.K. Singh, HOP, NTPC Khargone, all GMs and their teams, AGM HR, Mr. J.P. Satyakam and his team for always extending their unconditional help and support. My special thanks and gratitude to President Ahilya Mahila Mandal, Omnipresent Mrs. Usha Singh, and Vice President Mrs. Radhika Rao and Mrs. Meera Sarangapani for their gracious presence. Behind every successful program lie the manifold attempts of our committed faculty. I would like to take a moment to acknowledge the immense contribution of our dedicated faculty. Sincere thanks to all the non-teaching staff too for their support and untiring efforts. A special thanks goes to our parents. The success of every institution rests on love and support of parents. We are indeed lucky to get your unconditional love and support. We look forward the same in future also. Finally, in the end, I would like to extend my wholehearted gratitude to our illustrious children who always live up to our expectations and who are our pillars of strength. Thank you all for making this program a huge success.